Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have completed the exercise 4.3. ओके उसमें हमने पढ़ा था, कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने कैसे पॉलीगॉन्स कैसे बनते हैं, कर्व्स किसको बोलते हैं, आफ्टर द कर्व्स ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व. कर्व के बाद हमने सीखा था पॉलीगॉन्स. तो पॉलीगॉन्स इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट एंड क्लोज कर्व. और उसके पार्ट्स सीखे थे कि भाई पॉलीगॉन्स में एक तो साइड्स होती है और एडजेसेंट साइड होती है, वर्टेक्स होते हैं और एडजेसेंट वर्टेक्स एंड डायगोनल. उसके बाद हमने सीखा था एंगल. एंगल इज द मेड बाय द टू आर्म विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स 1. ओके, और उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट. इतना हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. नाउ वी आर इंट्रोड्यूस द ट्रायंगल. द ट्रायंगल is three side polygon. Okay, the triangle is three side polygon. It means it is a closed curve by line segment. How many line segment? 3 line segment. The closed curve by the three line segment is called triangle. 1, 2 and 3. This is the triangle, and they have 3 vertices A, B and C. Okay, and then they have 3 sides A, B, B, C and C, A. Again, these parts of triangle is interior, okay, और इसको एक्सटीरियर. और जो लाइन पे होते हैं ऑन द ट्रायंगल, इट्स कॉल्ड ऑन द ट्रायंगल. ऑन द ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ पे द एंगल हैव ट्रायंगल हैव 3 एंगल, 3 वर्टेक्स एंड 3 लाइन. सो वी कैन ऑल्सो बी राइट लाइक triangle have 3 vertex, 3 vertices, 3 sides and 3 angles. Okay, triangle have 3 vertices A, B and C, 3 side A, B, B, C and C, A and 3 angles, angle A, angle B and angle C. तो ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही है, लिख लीजिए. So now we are starting the exercise 4.4, and again I am instructed you that you can bring with your textbook to write a question of exercise. Okay, now question is, first question is, draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in the interior and a point Q in the exterior and a point A in the exterior or interior part. So here first we draw the rough sketch of triangle ABC. Point A, vertex B, vertex C. Here the first we can draw the point P in the interior. Point P is in interior of triangle ABC. Now we can put a tick mark, a Q, point Q. Point Q is in exterior part of triangle ABC. And third one is the where is the question? Yes, point A. Point A is already done at the vertex as a A. So A is the neither interior part nor exterior part.
So we can say that point A is neither in a interior nor in the exterior. On the triangle ABC. Okay? So now, this is the first question, and second question is, write the name of, identify the three triangles in the figure. The first question, identify the, यहाँ पे फोर एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला, identify the three triangle in this figure. So we can see here, first the triangle ABC, triangle ABD and triangle ADC. यहाँ पे मुझे तीन, we have seen a three different triangles appear in this figure. Now question number B, write the name of 7 angle. अब हमें यहाँ पे 7 एंगल्स दिखाने होंगे. फर्स्ट ABD एंगल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क, एंगल ABD, ये वाला एंगल, ठीक है. दूसरा वाला एंगल BDA, ओके. तीसरा वाला एंगल DAB, फोर्थ वाला ADC, ये पहले वाला एंगल था, ये दूसरा वाला, ये थर्ड वाला एंगल ADC, ये फोर्थ वाला एंगल, ठीक है. नाउ द फिफ्थ एंगल DCA, एंगल DCA. नाउ सिक्स वाला, सिक्स एंगल DAC और एंगल 7 एंगल DAC, BAC, ये पूरा वाला, ये भी अलग होगा ना, इससे इन दोनों से ये डिफरेंट होगा पूरा वाला. सो वी कैन सी हियर 7 डिफरेंट एंगल्स इन दिस फिगर. नाउ question number C is, write the name of 6 line segment. Now we want to write the 6 line segment. First one is AB, BC and AC. पहले वो तीन तो लिख ही देते हैं. AB, BC, CA. कितनी लिखनी है हमें? राइट द 6 लाइन सेगमेंट. तो ए बी आ गया, बी सी एंड सी ए. नाउ ए डी, ये ए से डी लाइन सेगमेंट. अब बी से डी, बी से डी एंड 6 वाली डी टू सी, डी से सी. हो गई 6 लाइन सेगमेंट. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच 2 ट्राइंगल्स हैव अ एंगल बी एज अ कॉमन. ओके, यहाँ से कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन एंगल के तौर पे है. सो यू कैन इजीली सी हियर, फर्स्ट वन इज द ट्राइंगल ए बी सी. triangle ABC and triangle ABD have a common angle B. ये पूरा ट्राइंगल नंबर 1 और दूसरा हाफ, इन दोनों में कॉमन एंगल होगा B. क्वेश्चन नंबर 4.4 में 2 ही क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि इन चैप्टर में छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इसीलिए कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा. आपको सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना है और बुक में से आंसर लिखना है. ठीक है,
write down the exercise 4.4 with the question and answer. After the triangle, we are introducing the quadrilateral. So what is the quadrilateral? The quadrilateral is the one kind of the polygon which have a 4 line segment. The quadrilateral have a polygon which are 4 sides. Okay? जिस polygon में 4 line segment होती है, उस polygon को हम quadrilateral कहते हैं. देखो यहाँ पे like this. These all are the quadrilaterals. Okay, we can take a name A, B, C, and D. Again, A, B, C, and D. They have 4 vertices, 4 sides, and 4 angles. Okay, then here the quadrilateral have a, as per the shown in the figure, the quadrilateral have a 4 side AB, BC, CD, and DA. And 4 vertex A, B, C, D, and 4 angles, angle A, angle B, angle C, and angle D. Now you can easily see here in the figure, we have a 2 pairs of angles. We can see here the adjacent sides and adjacent vertex again, then opposite side. So here adjacent side are AB and BC, BC and CD, CD and DA, DA and AB. They all pair of adjacent sides. Now opposite side. Opposite sides are AB side की opposite है CD. AB and CD are the opposite sides. BC and AD are the opposite side. Same here we can see that the vertices and angles are opposite and adjacent. Here B and D opposite vertices, A and C is the opposite vertices. So we can again write here A and C, B and D are opposite vertices. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमें इतना मालूम होना चाहिए, यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स की पेयर होती है, ऑपोजिट साइड्स की पेयर होते हैं, उसी तरह एडजेसेंट पॉइंट और ऑपोजिट पॉइंट भी मिलते हैं. राइट डाउन इन योर फेयर बुक. सो नाउ एक्सरसाइज इन द 4.5. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. So first we draw the rough sketch of PQRS quadrilateral like this. PQRS. Draw its diagonals. We all know that the diagonal is the line segment which are joined a non-adjacent point. Whenever the two diagonals intersecting to each other, its name is point O. Name them
is the meeting point of the diagonal. The meeting point of diagonal is O. In the interior or exterior of the quadrilateral, the meeting point of diagonal is interior of quadrilateral. इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है तो के क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN. In question number 2, KLMN. Two pair of opposite sides. Two pair of opposite sides are two pair of opposite sides are LM and KN. ये ऑपोजिट साइड है, ठीक है, टू पेयर्स. दूसरी वाली क्या है, KL and MN. टू पेयर आर ऑपोजिट साइड्स. नंबर बी, टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. एंगल फर्स्ट वन इज एंगल K and angle M. Number 2, angle L and angle N. These both are opposite angles. Number 3, two pair of adjacent side. The adjacent side is KL LM. Number 2, MN NK. ओके, दिस इज द एडजेसेंट साइड. ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है और ये दोनों भी एडजेसेंट ही है. नंबर 4, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. एंगल K एंड एंगल K के बाजू में है L और एंगल K एंड एंगल N. ओके, इस एक्सरसाइज में थर्ड वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना है. क्वेश्चन 1 और 2 राइट डाउन इन योर बुक. सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ वन न्यू वर्ड, अ सर्कल. अब सर्कल में जो मैंने कई सारी बात लिखी है, हर एक बात को मैं आपका ड्राइंग के साथ समझाऊंगा, पर आपको पहले नाम सबके याद रहने चाहिए. फर्स्ट वन इज द सर्कल. सर्कल इज नेवर विदाउट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस, chord, diameter, arc, sector and segment. These all are center of the circle, radius, chord, diameter, arc, sector and segment. These all are the part of circle. These all are a part of circle. And a circle is the closed curve. Okay? A circle is a closed curve without line segment. देखो पूरी बात मैं ये आपको समझा देता हूँ, बाद में ये सब लिख लेना. ये जो लिखा हुआ है वही सब चीज़ मैं यहाँ आपको सर्कल में समझाऊंगा. कोई एक पॉइंट से, कोई एक फिक्स पॉइंट से, कोई फिक्स डिस्टेंस लेके आप, कोई एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लेके जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट का पूरा ग्रुप मिलता है. A circle is the made up all of the points which are the equidistant from the fixed point. कोई फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर आपके कोई और पॉइंट का समूह मिलता है तो इट्स कॉल्ड ए सर्कल. अब देखो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द of the center, it's called radius. This is the radius. This one is the radius. Radius is the distance from the center to circle, and every distance of the every radius will be same for same circle. सेम सर्कल के लिए रेडियस सभी जगह पे रेडियस कैसी रहेगी, एक सरखी ही रहेगी, एक समान ही रहेगी, इक्वल रहेगी. ओके, देन this one is the center O, this one is the radius. Okay, now we are doing to the line segment which are joining the 2 point of the circle AB. ये A और B दोनों सर्कल पे ही पॉइंट है, A और B दोनों सर्कल के ही पॉइंट है. ये A और B को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे कॉर्ड. क्या बोलेंगे? chord. And in the one circle infinite chord we can draw. ओके, मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी. We can draw the finite chord in a one circle. Okay, but only we can represent by one. एक सर्कल में एक से ज़्यादा कोड मिलते हैं. Okay, good. Now, the next definition is diameter. The diameter is the chord which are passing through the center of the circle. It's called a diameter. You can say another way, the maximum length of the chord. The maximum length of the chord is called diameter. है ना? So, the chord which are passing through the center of the circle like this, it's called diameter. Diameter is the maximum size of chord also. So P and Q, the chord which are passing through the center of the circle is called diameter. So here AB and PQ. Okay, so we have completed so many definitions like a center, radius, chord and diameter. Now next, arc. Arc is the part of circle like that. This is the part of circle x y. X y. This is the x and y. This distance will be included in this circle. So this one is the arc. Okay. Now sector. Sector is the enclosed area of the interior of circle which are made by the arc and two radii. This is the sector. Okay, sector is enclosed area of interior circle which are made by arc and two radius. This one is the sector. Okay, it is also be called the minor sector, and the remaining area of the circle is major sector. But now we are introducing only sector, so we can say that sector is the enclosed area which made by the arc and two radius. Okay, and the final and last, segment. The segment is enclosed area of interior circle of made by arc and chord like this. This is also be arc. AB is the arc and AB line segment AB is chord, and by the unclosed chord and arc, this is the segment. सेगमेंट किन से बनता है? तो कि कोई आर्क हो और वो आर्क के एंडिंग पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रही है, जो कोड हमें मिल रहा है, वो कोड और इस आर्क से जो एरिया कवर हो रहा है, उस एरिया को हम सेगमेंट बोलेंगे सर्कल के. ठीक है. सो अब सर्कल के सभी पार्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए हैं. दिस वन इज द सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है. ये हो गया डायामीटर.
डायामीटर पी क्यू। ये हो गया रेडियस, ये हो गई आर्क, या आर्क हमें दो जगह पे मिल रही है, आर्क तो हमें कितनी भी ले सकते हैं सर्कल में, ठीक है। रेडियस हो गई, सेक्टर, सेगमेंट। अच्छे से ये फिगर ड्रॉ करके सभी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। इस फिगर के ऊपर से हमें आइडेंटिफाई करना है जो डिटेल हमें पूछी गई है। नंबर 1 द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वी कैन से दैट ए center of circle is O. Center of circle is O. Number 2 3 रेडी, रेडियस हमें फाइंड करनी है 3, तो यहाँ पे ओ बी, ये पहली वाली रेडी, सेकंड वाली रेडी है ओ ए एन, ओ टू सी थर्ड रेडी। नंबर सी a diameter, you can see the chord which are passing through the center of the circle is diameter AC. D chord, the line segment which are joining the 2 points on the circle E and D, ED. E 2 points in the interior, इंटीरियर में आए हुए 2 पॉइंट्स P एंड O। F अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के बाहर वाला पॉइंट कौन सा है? Q। G अ सेक्टर, सेक्टर इज लाइक दिस, ये सेक्टर है, this one is a sector which is made by ओ ए बी, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ओ ए बी इज सेक्टर, ए बी सी डी एफ जी एच, A B C D E F G H I. A segment, segment is enclosed area by line segment ED. ये पार्ट, ये भाग है वो सेगमेंट कहलाता है। तो enclosed area by ED and arc, ईडी। आर्क को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईडी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्कल आल्सो कोड। अब देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक सर्कल का सेंटर है, अब सभी डायमीटर है वो कोड ही कहलाते हैं। देखो ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब कोई भी डायमीटर ड्रॉ करो वो सभी कोड तो कहलाते ही है, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कोड इज द लाइन सेगमेंट विच आर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सभी लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइंट करती है, इसीलिए सभी डायमीटर नेसेसरली कोड। बट क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 में बी, इज एवरी कोड ऑफ द सर्कल ऑल्सो डायमीटर? नो वे। वाई? अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करो उसमें क्या ये कोड है लेकिन डायमीटर नहीं है, यहाँ पे भी ये कोड है लेकिन डायमीटर नहीं है। हम कई सारे कोड ड्रॉ कर सकते हैं पर ये सभी डायमीटर हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर एवरी कोड इज नॉट नेसेसरली डायमीटर, बट एवरी डायमीटर इज नेसेसरली टू कोड। ये दोनों चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि सभी डायमीटर कोड तो है पर एवरी कोड इज नॉट
डायामीटर। क्वेश्चन आपको सिर्फ लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। अभी मैंने जो 2 मिनट पे आपको ड्रॉ करके बताया था ना यहाँ पे, वही क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके थोड़ी देर पहले दिखाया था यहाँ पे सर्कल, ठीक है। सेंटर ओ यहाँ पे लिखना हो तो अब लिख लेना। सेंटर ओ, रेडियस OP। थर्ड वन डायामीटर यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना, साइड में करते हैं। MN, डायामीटर MN। नंबर 4, यहाँ पे ABCD लिखी है, ABCDE। सेक्टर ये सेक्टर में काउंट कर लो तो भी चलेगा। सेक्टर ONP। ई वाला सेगमेंट AB। F, a point in its interior। P is the point of its interior। A point in its exterior। P नहीं लिखना है, P तो यहाँ पे है। Z और X, पॉइंट X। और H, an arc AB। हो गए सभी पॉइंट। जो हमने 2 मिनट पे ड्रॉ किया था वही हमें अच्छे से ड्रॉ करोगे आप तो भी चलेगा। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। 2 ही ट्रू फॉल्स है। 2 diameters of a circle will necessarily intersect। 2 diameter, यस, मैंने अभी आपको बताया था ना, आप जितने भी डायमीटर ड्रॉ करोगे वो सब पॉइंट O में इंटरसेक्ट होगे ही होगे। ट्रू, सभी डायमीटर सेंटर में इंटरसेक्ट होते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर। सही बात है, सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के बीच में ही रहेगा, अंदर के भाग में। तो इट इज ऑल्सो बी ट्रू। चलो, इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें सीखी थी, कई सारी। अब पॉइंट से लेके पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेस, रे के बाद एंगल के बाद हमने सीखा था ट्रायंगल के बाद हमने सीखा था कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व, पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल। इतनी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में बेसिक जियोमेट्री में सीखी थी, ठीक है। तो आपको अच्छे से अब इन सभी ऑब्जेक्ट, इन सभी फिगर्स का आपको माइंड में होना चाहिए। और ये जो बेसिक जियोमेट्री के सभी इंस्ट्रूमेंट्स है, सभी जो नाम है, सभी उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ओके, राइट डाउन ऑल द एक्सरसाइज, ऑल द थियरी फ्रॉम last 2 or 3 video and write down in your fair book with the net handwriting and figure.
थैंक यू सो मच।